Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anita. So today I'm here to discuss important points that you need to keep in mind before starting any government exams preparation, or let's say any competitive exam preparation. These are the points which will going to help you to achieve your goal in a stipulated time. Right? See, there's no point. आप जब भी अपनी preparation start करते हैं तो आपको पता होना चाहिए that exactly what all things you need to achieve your goal. There's no point you are doing your hard work and you're not able to attain your goal, right? That means you're lacking somewhere. So hope these points will help you to give you a clear picture. Dreams don't work unless you do, right? So if you're dreaming to get a government job, if you're dreaming कि God please मुझे भी government job मिल जाए, I need to get a government job, I wish I get a government job, right? So if you wish, then work hard for it, right? And work hard in a smarter way. Make a strategy, make a plan that how you're going to achieve your goal, right? Now, important points to consider. So these are the important points जो आपको consider करने हैं अगर आप किसी भी job की preparation, किसी भी government job की preparation करने जा रहे हैं. These are the important points which play very important role if you are following these points very seriously. Mind my words. अगर आप ये points को seriously follow करते हैं, अगर आप ये points को seriously follow करते हैं, then these points will going to help you in achieving your goal, right? The first point is understand the pattern of examination. आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं, so you need to first understand the pattern of examination. By pattern, what I mean is कि एग्जामिनेशन के कितने फेजेस हैं, ठीक है? वेदर दिस एग्जाम ओनली इंक्लूड्स द मेन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू होता है. There are certain exams which only have the mains exam and after that you are going to give the interview. There are certain exams which have the prelims as a first stage, then mains, then interview, and then there will be a merit list, right? So you need to first understand the pattern of the examination कि जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है exactly, कितने phases उसमें involve हैं to qualify that exam, right? Second is the number of sections. Now by the number of sections I mean the subjects कि उस particular exam में, in that particular exam, how many subjects are there, how many subjects you will going to face in your examination. English, maths, general awareness, quant, what are the subjects you're going to face. Okay, analyze previous year cutoff, sectional and overall cutoff. This is very important. अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपने ये जान लिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है एंड आफ्टर दैट व्हाट आर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू फेस इन द एग्जामिनेशन. If you are not focusing on this point, that what was the previous year cutoff, what was the previous, क्या कट ऑफ था, सेक्शनल कट ऑफ क्या था और ओवरऑल कट ऑफ क्या था इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, देन यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? जब आप ये पता करेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया है, सेक्शनल कट ऑफ चाहिए या आपको ओवरऑल कट ऑफ चाहिए, देन यू विल मेक अ स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. ओके, आपको तब पता चलेगा कि मेरे को किस सेक्शन में कितना हार्ड वर्क करना है, कौन सा सेक्शन है जो मेरा अच्छा है और कौन सा सेक्शन है जिसमें मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है अकॉर्डिंग द प्रीवियस ईयर कट ऑफ. आपको पता, एंड जब आप ये जान लेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, तो आप जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, आप मॉक्स लगाएंगे, आप टेस्ट देंगे, आपके दिमाग में हमेशा ये पॉइंट क्लिक होता रहेगा, ओके दैट दिस वाज द कट ऑफ और मुझे अभी भी मेरे मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं, सो मुझे अभी और मेहनत करने की जरूरत है. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूजुअली कैंडिडेट्स जो है वो मिस कर जाते हैं, एस्पिरेंट्स जो है वो मिस कर जाते हैं, ठीक है? सो यू शुड नॉट मिस ऑन दिस पॉइंट एंड यू शुड कंसिडर दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज थॉरो एनालिसिस ऑफ योर सिलेबस. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो एक बार आप प्लीज पूरा जो सिलेबस है वो आप गो थ्रू करें, ठीक है? सी, नाउ इज अ डिजिटल एरा. आपको बहुत सारी जगह बहुत कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए, अलग अलग टीचर से, अलग अलग सोर्सेस से आपको कंटेंट मिलेगा, आप फॉलो करें, लेकिन पहले आप ये देख लें कि उसमें से क्या है जो आपके सिलेबस में पूछा गया है, क्या है जो सिलेबस में बताया गया है कि these are the topics which are important, these are the topics that is the part of your syllabus, right? So आप वो देख लीजिए, एक बार थॉरो एनालिसिस कर लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है? जब आपने थॉरो एनालिसिस कर लिया अपने सिलेबस का, देन यू नीड टू मेक अ लिस्ट कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा वीक टॉपिक्स हैं जिसपे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये कैसे पता चलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं,
राइट? और आपने सिलेबस भी एनालिसिस किया है, तो समवेयर आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। या अगर आपको ये नहीं पता चलता है, आप बहुत न्यू है उस चीज में, तो भी आपने वो टॉपिक्स पहले कभी पढ़े होंगे, ठीक है, इन योर ग्रेजुएशन और इन योर स्कूलिंग, तो आप उनकी लिस्ट बना लीजिए कि ठीक है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिसपे मुझे थोड़ा सा और मेहनत करके इनको बहुत अच्छा बनाना है, और ये मेरे वीक पॉइंट्स है जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत करके इतना काम कर लेना है कि ये मुझे मेरे कट ऑफ में हेल्प करे, ठीक है। वीक टॉपिक्स ऑलवेज मेक अ पॉइंट कि वीक टॉपिक और वीक सब्जेक्ट की वजह से आपका कट ऑफ कभी भी ना रुके, ठीक है। हमेशा आप इतनी उसमें मेहनत कर लीजिए कि आपके कट ऑफ उसमें क्लियर हो जाए, आपके ओवरऑल कट ऑफ में उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी। नाउ आपको ये पता चल गया कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, कितने उसमें फेजेस हैं, कर लिया है आपने, एक बार सिलेबस भी गो थ्रू कर लिया है कि दीज आर द सिलेबस, ये इस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस है, और आपने ये भी जॉट डाउन कर लिया है कि दीज आर माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड दीज आर माय वीक पॉइंट्स, राइट? नाउ कम्स द पॉइंट इज प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी। सी, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, देन प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी फ्रॉम डे वन। ओके, माइंड माय वर्ड्स, प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी फ्रॉम डे वन। आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि मेरे को ये एग्जाम कैसे क्लियर करना है, व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी, टिल व्हेन आई एम गोइंग टू कवर माय सिलेबस, फ्रॉम व्हेन आई विल स्टार्ट माय मॉक टेस्ट, मैं कैसे हर एक टॉपिक के बाद अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, कैसे कितने टाइम में क्लियर करूंगा, कैसे मुझे टाइम मैनेज करना है, एवरीथिंग, किस टाइम पे मैं अपनी जनरल अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करूंगा, वीकली डेली में पढ़ूंगा या मैं वीकली पढ़ूंगा, सो दिस कम्स अंडर योर स्ट्रैटेजी। सो प्लीज प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी, और आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसकी फीजिबिलिटी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 4 घंटे बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज नो पॉइंट। As I always say, there is a difference between desirability and feasibility. So आप जब बहुत excited होते हैं, क्या मैं स्ट्रैटेजी में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन at the end of the day आप 2 दिन फॉलो करते हैं, उसका पता भी नहीं स्ट्रैटेजी कहाँ गई, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, स्ट्रैटेजी बनाइए, और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए जिसकी फीजिबिलिटी हो, जो आप डे टू डे में उसको अप्लाई कर पाए, ठीक है। प्लीज मेक अ स्ट्रैटेजी एंड वर्क ऑन इट। नेक्स्ट इज मेक योर स्टडी प्लान। नाउ स्टडी प्लान में आप डेली डिसाइड करेंगे कि आपको दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको कितनी देर पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। कल अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा था तो आज उसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे, आज कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, आज कौन सा टॉपिक कवर करना है। सो दिस कम्स अंडर योर स्टडी प्लान। स्टडी प्लान भी आपका ऐसा होना चाहिए जिसकी फीजिबिलिटी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी मन में आके उठा लिया मैंने, कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है। उससे क्या होता है, यूजुअली आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाते हैं। आप कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं अच्छा ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, और वी कीप ऑन वर्किंग ऑन आवर वीक सब्जेक्ट। सो ऐसा आपको नहीं करना है। यू शुड गिव respectable time to both your strong subjects and your weak subjects. Next is work on your weak topics along with your strong one. वीक टॉपिक्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वीक टॉपिक्स या वीक सब्जेक्ट पे। आई टेल यू, तो आपको आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है या कौन से टॉपिक्स वीक हैं, उन सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे आपको काम करना है। कैसे काम करना है, लेट्स सपोज आप क्वांट सेक्शन उठाते हैं, क्वांट का पेपर आपको एनालाइज करना है अच्छे से। उसमें आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन हर बार आता है, किस टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, ठीक है। उसमें से आपको कौन से इजी और टफ लगते हैं, तो जो मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं, जो मैंडेटरी टॉपिक्स हैं, उस पे आपको काम करना है, ठीक है। अगर वो वीक है तो आपने क्या करना है, देयर आर सो मेनी साइट्स अवेलेबल, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल, आई कैन से, जहां से आप वो डेली जो है टॉपिक्स पे क्वेश्चंस डालते हैं। एंड माइंड माय वर्ड्स, अगर आप वो डेली टॉपिक्स उठा के वो डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, देयर इज नो point that आप वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, there's no point that you won't be able to make it in that weak topic or weak subject, right? So कैसे करना है, आपको जो भी टॉपिक आपका वीक है, जो भी टॉपिक आपका वीक है, जो भी टॉपिक आपका वीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, आप जाइए, आपको पहले पढ़िए थॉरली, ठीक है, एक अच्छे सोर्स से पढ़िए जहां से आपको समझ में आ रहा है।
उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाइए, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मॉर्निंग में भी करने हैं और इवनिंग में भी करने हैं। जो भी वीक टॉपिक है, जो भी वीक सब्जेक्ट है, आप जो स्टडी प्लान बना रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 1-2 घंटे ऐसे रखने हैं कि वो वीक टॉपिक्स पे आपको काम करना है और वो डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, डेली मॉर्निंग इवनिंग। एंड माइंड माई वर्ड्स, आपको कोई भी वो एग्जाम क्लियर करने से नहीं रोक सकता अगर आप इस तरीके से अपने वीक टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स और वीक सब्जेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक। आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, 1 दिन 2 दिन जितना भी आपको जब तक लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया टॉपिक पे, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेगुलर लगाइए, ठीक है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, दिस विल मेक यू कंफर्टेबल व्हाइल अटेम्प्टिंग योर एग्जाम, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं तो आपको डर नहीं फील होगा, ठीक है। यू विल नॉट फील दैट स्कैर्डनेस कि यार आज एग्जाम में कैसे करूंगा। आपको ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा जब आप इतना सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसको करके देखिए एंड यू विल फील अ डिफरेंस। नेक्स्ट इज previous year question papers. Previous year questions paper plays a very important role in any government exam or in any competitive exam. आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप मॉक से उठाइए वहां से। प्लस जो टॉपिक आपने कवर किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए कि उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप जैसे टॉपिक कंप्लीट करेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। एंड देयर इज नो पॉइंट कि आप वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दिस विल यू नो गिव एन एज इन योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज डू नॉट वेट फॉर सिलेबस कंप्लीशन, प्रैक्टिस मॉक्स। ये हम गलती बहुत यूजुअली कर लेते हैं, यार अभी तो मैंने किया ही नहीं, अभी तो मैंने 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, मॉक्स कैसे दे दूं, अभी तो मेरा आधा सिलेबस पढ़ा है, मॉक्स कैसे दे दूं, अभी तो मेरे 2 चैप्टर और पढ़े हैं फिर मॉक दूंगा। एंड ऑफ द डे मॉक खरीद के भी रख लेते हैं और देते कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको डर लगता है। डर किस चीज से लगता है? मॉक देंगे कम मार्क्स आएंगे, डिमोटिवेटेड फील होगा, तो क्या हो गया? मॉक्स हैं, आप खुद दे रहे हैं, 1 दिन कम आएंगे, 2 दिन कम आएंगे। आप एनालाइज करिए अपनी मिस्टेक्स, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करेंगे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मॉक्स में आ रहे हैं और मैं ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो फेस करने के लिए कंफर्टेबल हूं या नहीं, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। सो रेगुलर प्रैक्टिस मॉक्स, प्लीज practice mocks regularly. Next is start your preparation early. Now what I mean from that, अब हम सोचते हैं यार नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के, है ना, क्या करेंगे कोर्स लेके। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब नहीं पढ़ना है। अगर किसी एग्जाम को सोच रखा है आपने कि मुझे इस एग्जाम में अपियर होना है, मुझे इसको क्वालिफाई करना है, देन प्लीज डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी आप पढ़ना शुरू करेंगे, और जल्दी पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज एक 10 मिनट का टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद कल 10 मिनट पढ़ लिया और एंड में जाके जब नोटिफिकेशन आ गया तब पूरा जो है बर्डन अपने सिलेबस का लेके बैठे हुए हैं। ऐसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। आप एक रेस्पेक्टेबल, अगर आपको पता है कि नोटिफिकेशन 6 महीने बाद आएगा तो आप 6 महीने का शेड्यूल बना लीजिए कि 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में कैसे क्या क्या मुझे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, और अकॉर्डिंगली यू कवर योर सिलेबस, राइट। So guys, these are the important points that you need to consider if you're going to prepare for any government exam. And mind my words, these are the points, जो हम मिस कर जाते हैं। कई बार हमको पॉइंट्स पता भी होते हैं फिर भी हम उन पे वर्क नहीं करते हैं। अनकॉन्शियसली हम उसमें वर्क नहीं करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो कल परसों करने से नहीं चलेगा। Please make it today. Please like, share and subscribe to my channel for more such content. Thank you for watching.